السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہیں. ہمارے جو 5 سبجیکٹ جو فوکل پوائنٹس ہمیشہ رہے ہیں: مذہب، معاشرہ، معیشت، ماں اور میڈیا. تو معیشت پر ہم نے بہت کم پروگرامز کیے ہیں، یا ہم نے فارن ٹریڈ کمرشل کونسلرز کی جو پرفارمنس تھی اس کے حوالے سے ظفر الہالی صاحب کے ساتھ کیے 2-3 پروگرامز. جو ہماری معیشت جس طرف جا رہی ہے اور اب ہائی الرٹ ایشو ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ایسی مہمان ہیں جنہوں نے اپنی پہچان تو ان کی بنی تھی ریلیجیس اسکالر کی، اینڈ شی از اے ریئل ریلیجیس اسکالر ان آل بائی مینس. سو بٹ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ شی از اے سول سرونٹ اینڈ شی انجوائڈ اے ویری ہائی پروفائل پوسٹنگز ان FPR، انکم ٹیکس سروس سے تھیں، سول سروس میں، اور بہت سینئر آفسر ہیں. اور ان کی اکانومی کے بارے میں بالکل ان کو یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اسلام میں اکانومی جو ہے، چونکہ یہاں کون سا اسلام امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کہ ہماری پاکستان کی اکانومی کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ ٹرو پکچر جو ہے وہ ایک ٹیکس کلیکٹر سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہوتی ہے. اکانومی کے حوالے سے ہم ان لوگوں کو اپنے منسٹرز اور وہ لگاتے ہیں جو اکانومسٹ نہیں ہوتے ہیں. کم از کم پچھلے 4-6 لوگوں کے حوالے سے تو یہی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ فیلیور بڑھتا چلا جا رہا ہے. حتیٰ کہ ہمارے پچھلے چیئرمین FBR جناب شبر زیدی صاحب نے آ کر ابھی پچھلے دنوں جو میڈیا پر اعلان کر دیا بینک کرپسی کا اور اکانومی کے بالکل دیوالیہ ہونے کا، اس سے کیا ہوا. شہر بانو ہمارے ساتھ ہیں، شہر بانو والا جائی، اور ان کا شمار جو ہے بہت اچھے سول آفیسرز میں ہوتا ہے اور بڑی انٹیلیجنٹ ہے. ان کی بہت مطالعہ ہے ریلیجن پر، اور جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں ان سے ریلیٹ کر کے یہ اپنا جو ان کا جو بھی سرمن ہوتا ہے اس میں ہمیشہ کرنٹ افیئرس کو وہ ریلیونسی اس کی کیا بنتی ہے ہمارے ریلیجن کے ساتھ، اس حوالے سے یہ بات کرتی ہیں. یونیورسٹی کے زمانے سے اوریٹر رہی، اور جو اوریٹر ہوتا ہے وہ ویسے ہی مطالعہ بہت کرتا ہے، تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ دیکھ بھال کے پیش کرتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں شہر بانو والا جی. السلام علیکم شہر بانو. اچھا، لوگ آپ کو ایک ریلیجیس اسکالر کے نام حوالے سے ہی جانتے ہیں، اور جو آپ کے قریب ہیں، آپ کے سرکل کے لوگ ہیں، وہ آپ کو ایک سول سرونٹ کی حیثیت سے جانتے ہیں. لیکن شہرت آپ کی جو ہے وہ ایک ریلیجیس اسکالر کی ہے، اور غالباً جب بھی ریلیجیس اسپیچز کے لیے، ٹاک شوز کے لیے جب بھی بلایا گیا ہے آپ کو، تو ان معاملات پہ آپ سے بات ہی نہیں کی گئی جبکہ آپ سے بات کرنی چاہیے تھی. کہ ہماری اکانومی جو ہے اس کی، آپ اتنے سینئر اب آفیسرز ہیں، جج ہیں ٹیکس ٹرائبونل کی، تو اس وقت تو آپ کو بہت زیادہ معلوم ہوگا کہ لوگوں کے گریوانسز کیا ہوتے ہیں، ٹیکس پیئر کے بھی اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بھی، کیونکہ وہ بھی کبھی کبھی اپیلنٹ ہوتا ہے جیسا آپ نے ابھی بتایا ہمیں. اب آپ بتائیے، پہلے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ایک خوف و ہراس پھیلا ہے اکانومی کے دیوالیہ ہونے کی، پاکستان کی بینک کرپسی کے حوالے سے، شبر زیدی صاحب کے بیان کے پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہوں، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ شبر زیدی صاحب کے بیان کی کوئی خاص اہمیت نہیں. اچھا. اور شبر زیدی کسی بھی طور پر اکانومسٹ نہیں. ایک اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ سے باہر نہیں نکل پاتا، وہ بھی ڈیبٹ کریڈٹ کے پرسپیکٹو میں شاید انہوں نے یہ بات کی. اور اکانومی از اے ڈفرینٹ بال گیم، اور اکاؤنٹنسی از اے ڈفرینٹ ڈومین. چند دن انہوں نے بہار میں ضرور ان کو ٹیسٹ کیس کے طور پر وہ لائے گئے، تو دیٹ واز ناٹ اے سکسیس اسٹوری. مگر ان کا کہنا یہ کہ جو FPR کے اندر مافیا ہے اس نے ان کو نہیں چلنے دیا. یہ سب ان کا ورژن ہے. اور دیکھیں، ہر آدمی اپنے آپ کی کوئی نہ کوئی اس کی توجہ تو پیش کرتا ہے. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کے چند سو لوگوں میں، جس میں کوئی 2 درجن پارٹنر ہوں، ان کو ہینڈل کرنا، اور ایک کنٹری وائڈ آرگنائزیشن جس کے 35,000 امپلائی ہوں، ٹیئر وائز ہوں، جس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اور وہ پھر اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا،
सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ काम चलने करने का। का। फिर मार्केट इकोनॉमी को उनकी समझदारी नहीं थी। उनकी सारी ज़िंदगी कराची के अंदर फर्गूसन में गुजरी, तो वो उनको फैसलाबाद की मार्केट इकोनॉमी का, पिंडी की मार्केट इकोनॉमी का, गुजरात और जेलम और सियालकोट की मार्केट इकोनॉमी की वो तजर्बे नहीं हाँ, थे। ये दुरुस्त है। ठीक है, जो FBI के अफसरों को थे। और उनकी खैर अब आई डोंट फील लाइक मगर लोगों में तक फियर क्रिएट हुआ ना। देखिए मीडिया जो है, ये भी देखिए, ये भी आपके एक ना तजर्बेकारी या नी जर्क रिएक्शन का इजहार होता है इस स्टेटमेंट से जो उन्होंने दिया। कोई भी मुतहम्मिल मिजाज इकोनॉमिस्ट या सिविल सर्वेंट या इकोनॉमी को मुल्क की चलाने वाला पुराना कोई आदमी वो कभी भी ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं कभी दे सकता। इसलिए कि जो चीज़ पहले ही थोड़ी सी डामाडोल हो, टॉप्सी टर्वी हो, वहाँ पर आप इस तरह की फीलर छोड़ दें, तो इट मीन्स आप कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की बजाय कि फीलर से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। मतलब हु केयर्ड। केयर तो देखिए, अगर जहाँ एज फार मेरी बात एज सुनिए, स्टेट इज कंसर्न, वो तो किसी चीज़ पे केयर कर ही नहीं रही है। मगर otherwise लोग people are also not concerned about him or his state. He is not being taken serious at all. अच्छा, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि लोगों में पैनिक हो गया, देखिए कैपिटल जो थी ना वो ऑलवेज सेंसिटिव होता है। हाँ, कैपिटल ज़रा भी टर्बुलेंस को कैपिटल बर्दाश्त नहीं करता और वो कोई ना कोई सेफ साइड देखने की कोशिश करता है। ये सिर्फ ये बात है, फिनोमेना पाकिस्तान के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ नहीं, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी यही कुछ फिनोमेना है। आज आप एक ऐसा इस तरह का बेहुदा फीलर छोड़ दें वॉल स्ट्रीट पर, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के स्टॉक का क्या हाल होता है। करके देखें आप। नहीं, मगर उनके इस बयान के बाद से स्टॉक में भी प्रॉब्लम आया बहुत ज़्यादा। और डॉलर और गोल्ड दोनों पर जो आपके वैल्यूड करेंसीज हैं, वो डॉलर है और गोल्ड है आपका, और स्टॉक एक्सचेंज। बताऊँ ये डॉलर का तो जो रुपये वर्सेस डॉलर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इसके बहुत सारे रीजंस हैं और वो रीजंस में इंटरनेशनल कुछ कमिटमेंट्स लोगों ने कर ली बिकॉज ऑफ देयर इनएक्सपीरियंसेस, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात है कि हमारी इकोनॉमी शुरू दिन से एडहॉकिज्म पर चलती रही। जी, तमाम मामलात की तरह। जी, एडहॉकिज्म इकोनॉमी के अंदर उसका अंजाम आपको नजर आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कभी कोई लॉन्ग टर्म 10 साल का प्लान नहीं बना। अच्छा, फिर दूसरी बात है, आप कह के थकते हम एग्रेरियन इकोनॉमी। आप उस एग्रेरियन इकोनॉमी वो PL 480 के गंदम अमेरिका जो खैरात में देता था, आज तक आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, आज तक आप शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो PL 480 का जो आपके इतने बड़े एग्रीकल्चर जी आपको जो टीका लगा था वो मनहूस टीका, तो आज तक वो उस टीके से आप बाहर निकल पाए। तो वेयर इज दैट एग्रेरियन इकोनॉमी? आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो अरबों रुपया फेंक देते हैं और डॉलर टर्म्स में करोड़ों डॉलर, लेकिन आप वही सब्सिडी अपने फार्मर को देते हुए आपकी जान निकल जाती है। क्यों सब्सिडी अगर आप समझती हैं फार्मर को मिलती तो एग्रीकल्चर बेहतर होता, कुछ नहीं बेहतर होता। तो आप मेरी जरा अगर थोड़ी सी पीछे की तरफ आप जाएं तो आई थिंक दैट वाज द सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ऑफ पीपल्स पार्टी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टीज ओवर हियर, वी जस्ट टॉकिंग कि भाई उन्होंने क्या चीज़ एक पॉजिटिव की जिससे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट प्राइसेस बढ़ा दी थी। अच्छा, ग्रेन की सपोर्ट प्राइसेस बढ़ा दी। ये इसाकदार साहब के नहीं, ये अपना पीपल्स पार्टी के लास्ट टर्म में हफीज शेख तो प्रोविंस में थे। पीपल्स पार्टी के मुझे वो सलमान साहब थे, सलमान शाह थे या नवीद कमर थे। नवीद कमर वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, बट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी एक बेहतर वो रास्ता चूज किया। उन्होंने यूरिया, ये जो फर्टिलाइजर को प्राइसेस को ड्रॉप किया, सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाई, गंदम की सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाई, उन्होंने शुगर केन की सपोर्ट। तो लोगों की उस पीरियड में जब पर्टिकुलर देखें, इतनी फास्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट हुई इस मुल्क के अंदर कि एवरीबडी वाज रनिंग आफ्टर कि मुझे कोई एग्रीकल्चर का पीस मिल जाए, मैं उसे बाय करूं और मैं एग्रीकल्चर शुरू करूं। अच्छा, सच अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन दैट पीरियड। अच्छा, उस बाद बाकी देखिए, ट्रेडर्स जब भी हुकूमत करते हैं तो उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस या जो उनकी तरीक़ाकार होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वो क्विक प्रॉफिट्स के चक्कर में होते हैं। ट्रेडर क्विक प्रॉफिट के चक्कर में होता है, ट्रेडर को, और जो लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करता है वो देखिए, उसके लिए आपको, अगर आपकी इकोनॉमी एग्रेरियन है, अगर है, जैसे अगर आप जो कहते हैं, आप हमें तो अब तक
थोड़े से पीरियड के लिए लैंड रिफॉर्म जिस मुल्क में नहीं नाफिज हो सकी, चलिए वो भी एक, अब वो भी उसकी भी हकीकत नहीं रही, क्योंकि आफ्टर जनरेशन वो चीज़ें टूट के छोटी छोटी होके वो स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड रह गए हैं लोगों के पास, वो पुरानी बातें नहीं है। तो वो पीरियड को ही एज अ कंपैरेटिव स्टैंडर्ड रख लिया जाए, जो लास्ट पीरियड था, आई डोंट रिमेंबर कि थर्ड पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या सेकंड थी, बट एग्रीकल्चर इवन इन सेकंड पीरियड बेनज़ीर भुट्टो has given a lot of support prices to the agriculture sector. अच्छा, देखिए किसी मुल्क के अंदर अगर आप खाने पीने की अशिया अगर बहुत नज़र आ रही हो ना चीज़ों, लोगों को तसल्ली हो जाती है। बिल्कुल, सब्जी बाजार भरे हुए हों, ठेलों पर बहुत फल हो, सब्जियां हों, अनाज वाफिर मिल रहा हो, आपको ये ख़तरा ना हो कि आटा गायब होने वाला है, आपको ये ख़तरा ना हो कि शुगर गायब होने वाली है, तो लोगों के अंदर तहम्मुल और एक इत्मीनान। आप समझते हैं कि अभी ये पिछले 5 सालों में ये हुआ? ये बिल्कुल हुआ। लोगों को ये खतरा है कि मैं चावल भर लूँ अपने घर में, ज़ख़ीरा कर लूँ, मैं आटा ज़ख़ीरा कर लूँ, मैं शक्कर ज़ख़ीरा कर लूँ, मैं घी ज़ख़ीरा कर लूँ, ये ज़ख़ीरा क्यों? तो पता है शॉर्टेज, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तो इस्लाम में भी इसीलिए ममानियत है कि इससे शॉर्टेज होती है मार्केट में, जनरल पब्लिक के। अच्छा, अब लोगों को फियर क्या होता है? शॉर्टेज, कल मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छा, अब देखिए ना, जब आप दुनिया में ऐसी भी आपके सामने मिसालें मौजूद हैं ना कि लोगों ने सैंक्शंस लगा दिए, उनको सांस लेने उनके लिए बंद कर दी, उसके बावजूद दोस कंट्रीज आर सर्वाइविंग लाइक एनीथिंग। तो देखें, ये वो कंट्रीज हैं जो उन्होंने अपना एक्सपोर्ट सेक्टर जो है अलग प्रोडक्ट्स रखी हुई, क्या वो उनको एक्सपोर्ट से रेमिटेंस बहुत मिलता है। आपका एक्सपोर्ट सेक्टर उन कंट्रीज में जो डोमेस्टिक उनकी जो डेवलपमेंट सेक्टर है, डोमेस्टिक जो साइड है, वो उनकी एग्रीकल्चर है, तो वो अपनी खुराक खुद उगा रहे हैं। अब आपने कल भेज दिए शुगर बाहर निकाल दी कि जी अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा एक्सेस है, और 2 दिन बाद पता नहीं हमें तो बहुत ज़रूरत है। तो देखिए, केएमसी और कैंटोनमेंट का हम एक कंपैरिजन कर रहे थे कि ठीक है, आप कहती हैं कि एफबीआर को कैंटोनमेंट का टैक्स नहीं मिलता है। कैंटोनमेंट जो हमसे कलेक्ट करती है, जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट एरियाज हैं, तो वो उसके अपना हेड है कोई, उसका उसमें जाता है, वो कैंटोनमेंट का अपना हिसाब किताब, अपना हिसाब किताब। लेकिन जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है आपका वो है केएमसी। नहीं, हमारा वो भी नहीं है, नहीं आपका नहीं है, लेकिन मैं टैक्स से हाँ, वो देखिए प्रोविंसेस के टैक्सेस, प्रोविंसेस के डेवलपमेंट के लिए वो, जैसे सिंध में केएमसी है, लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या इस तरह के जो भी उनके वासा है एजेंसीज हैं, हम एफबीआर का एफबीआर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और ऐसा कोई लॉ भी नहीं है कि जो भी टैक्सेस जहाँ से कलेक्ट हो वो एफबीआर तक पहुँचे। दूसरी बात आपने की थी डॉक्यूमेंटेशन, फिनांस सेक्टर जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। देखिए अभी अब लोएस्ट स्लैब 50,000 से कम की आप रकम चेक के बगैर नहीं दे सकते। अब आपकी करेंसी कितनी डीवैल्यू हो चुकी है, 50,000 रुपये की क्या वैल्यू रह गई? कुछ भी नहीं। तो अब मकसद या तो प्लास्टिक मनी आप इंट्रोड्यूस करा दें कि एवरीबॉडी शुड यूज द क्रेडिट कार्ड, कार्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए से पेमेंट, तब तो आप डॉक्यूमेंट कर लेंगे। लेकिन इज इट पॉसिबल इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान देयर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट लिटरेट? मोबाइल पर ये तो देख सकते हैं मूवियाँ, क्लिप, व्हाट्सएप पर और सेल्फियाँ तो बना सकते हैं, लेकिन जस्ट टू टेल देम टू, फिर क्या आप उनको सारा सिस्टम आप प्लास्टिक इकोनॉमी पे ले आए प्लास्टिक पर, और उसके बाद फिर आप तो आपने ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये बात कहना कि सिर्फ हमारे यहाँ कैश इकोनॉमी चल रही है और सारी दुनिया में कैश इकोनॉमी नहीं चल रही, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसनॉमर है। दुनिया में हर जगह कैश इकोनॉमी चल रही है। अच्छा, हम पर शोर मच जाता है कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे, सब्सिडी प्रोवाइड करें, तो हमारी गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आ जाती है बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या इंडिया सब्सिडी नहीं देता अपने एग्रीकल्चर को? इतनी ज़्यादा देता है, बेइंतहा सब्सिडाइज करता है। क्या कनाडा नहीं देता? क्या अमेरिका नहीं देता? सब अपने एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करते हैं। सारी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडी भी चलती है। हमारे से कहा कि आप पैर से ज़मीन खींच ली कि आप एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज नहीं करेंगे। फिर आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, अरे भाई वहाँ पर भी आप टैक्स बचाना है तो कहते हैं अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो आपका टैक्स नहीं काटते। ये अमेरिका में भी होता है, कनाडा में भी होता है, यूके में भी होता है। तो अब वो यहाँ पर भी उसी हिसाब से। लेकिन ये आपने एक बात की ना कि यहाँ लिटरेसी रेट जिस तरह का लिटरेसी, हाँ। दूसरी बात देखिए, मैं बताऊँ आपको, टैक्स कलेक्शन तो तब आए बात करें ना कि जब लोगों को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी का मौका प्रोवाइड करें।
अच्छा, देखिए जो साउथ कोरिया का मॉडल बड़ा ज़बरदस्त था, उन्होंने जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप किया। हम ये बात काफ़ी कह कह के कई फोरम्स पे थक गए कि लेट कॉटेज इंडस्ट्री proliferate इन पाकिस्तान। ठीक है। हर आदमी को काम करने का मौका। SMEs जो हैं, मिस स्मॉल एंड अच्छा वो बना रहे हो SME बैंक बना, SME बैंक बनाने से SME नहीं चलती। एग्जैक्टली नहीं कि कॉटेज इंडस्ट्री से आप छोटे कारखानों को इजाजत नहीं है, उनको फैसिलिटी। अच्छा अब आपके पास देखिए ना रॉ मटेरियल क्या है, छोटे कारखाने आपने हम कहना बहुत आसान होता है। आपका जो रॉ मटेरियल है ना आपको एग्रीकल्चर ही, आपको एग्रीकल्चर बेस्ड स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए था, लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए था, शॉर्ट टर्म लोन। अब लोन कहाँ से ले आदमी मुझे पता है, इसलिए गवर्नमेंट इज द मेन बोरोवर फ्रॉम द बैंक। यस, तो उनको परवाह ही नहीं है, उनको क्लाइंट्स की या कस्टमर की जरूरत ही नहीं है, वो कहते हैं भगा देते हैं, देते ही नहीं लोन बैंक्स, इसलिए गवर्नमेंट इज द बायर बोरोवर। अच्छा अभी देखिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की, क्योंकि लोग इतने अच्छे, उन्होंने अभी सानिया निश्तर को गंदा कर दिया, इतनी अच्छी खातून, इतनी डेडिकेटेड वर्कर, उनको फंसा दिया वो एहसास प्रोग्राम में, और वो जो कुछ हो रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है हर वक्त मीडिया पे। अब डॉक्टर अमजद साकिब जैसा आदमी जिन्होंने वो बांग्लादेश के यूनुस की लेवल पर काम शुरू किया और उनको अपने लेवल पर बड़ी कामयाबी हो रही थी, अभी शौकत तरीन साहब ने इस बजट में उनको बुलाया, टीवी पे बुला के अनाउंसमेंट भी करा दी कि जी अब बैंक्स जो हैं, बड़े शेड्यूल बैंक और स्टेट बैंक, वो अमजद साकिब को लोन देगा और अमजद साकिब आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब, मुझे इस पर जरा, चूंकि उन बेचारों की भी, उनकी भी मट्टी पलीत करने जा रही है शायद ये गवर्नमेंट, चूंकि उनकी एक रेपुटेशन बनी हुई है और वो बन जाते यूनुस, डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश वाले। लेकिन यहाँ अब जब लोगों को ये पता चलेगा कि अरे ये तो बैंकों का पैसा है, अमजद साकिब का डोनेशन या उस फंडिंग से थोड़ी आ रहा है, खा जाओ इसको, जैसे लोग पीडी टैक्सियों में पैसे खा गए। लोग जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स निकलती हैं, आप सही कह रही हैं, लोन स्कीम्स जो हैं लोग खा जाते हैं। देखिए वो लोग जो खाने वाले होते हैं ना वो भी ताकतवर लोग होते हैं, आम मामूली आदमी बैंक का पैसा नहीं खा सकता। लेकिन तासुर तो ये है कि हर गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि जी हम छोटे आदमी को के लिए लोन का इंतजाम कर रहे हैं। क्या लोन दे रहे हैं, 25,000 रुपये लोन दे रहे हैं। 25,000 में क्या होता है, 18% तक आप उस पर मार्कअप ले रहे हैं जी। हाँ। ये थोड़ी सी मतलब, लेकिन इनका तो सुना है 2-3% इन्होंने कहा कि जी 2 या 3%। वो देखिए आप समझ हमारे व्हील्स विद इन व्हील्स जो है ना, जबरदस्ती व्हील को व्हील के अंदर एक फिट करना और अच्छा क्रिएट करना एक मुनासिबत। बैंक में लोग जाते हैं, कस्टमर्स हैं, बिल बैंक में जमा हो रहे हैं और बहुत सारे काम बैंकों से हो रहे हैं, तो व्हाई द पीपल शुडंट गो डायरेक्टली टू द बैंक? ठीक है, व्हाई somebody ABCD should be put into that scheme of things as a bottleneck? तो मुझे तो bottleneck जैसी चीजें नजर आएगी, तो वो मैं नहीं समझती कि इसका कोई बहुत कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। वो ठीक है, अपने NGO के तौर पर जो भी अपना प्रोग्राम NGO चला रहे थे, उनको चलाने देते, वो अपने तौर पे जो लोग उनको फंडिंग करते थे वो आगे कर्जे हसना के तौर पर इनका एक स्कीम है कि जो ये माइक्रो फाइनेंसिंग का लोगों ने शुरू किया, उसमें भी छोटे लोगों को पता नहीं लोन जिस तरह दिए खुदा जाने, बट इट वाज आल्सो अ वेरी हैवी मार्कअप लोडेड प्रोग्राम माइक्रो फाइनेंस में। और माइक्रो फाइनेंस में जितना भी काम हुआ, जिस गवर्नमेंट ने भी किया, आप समझते हैं उसके कोई रिजल्ट्स जो हैं वो उतने आए हैं पॉजिटिव जितने प्लान किए गए थे, या टारगेटेड रिजल्ट मिले किसी गवर्नमेंट को? उसकी रीज़न ये है कि रीज़न तो खैर मल्टीपल हैं, लेकिन गवर्नमेंट, मैंने आपसे जैसे कहा ना, प्लानिंग नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई कंक्रीट प्लानिंग नहीं है। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर जो है ना, वो हमारे यहाँ एक नेग्लेक्टेड सेक्टर है। मतलब आपके ख्याल में लोगों को इसकी तालीम देनी पड़ेगी? इसकी नहीं, देखिए जब भी कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक, जैसे मिसाल के तौर पर आपने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एक 5 साल 10 साल का प्लान बनाया है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना। अच्छा, जब आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ग्रोअर को फ़ायदा हो रहा है, मिडिल मैन को हो रहा है, रिटेलर को हो रहा है, ट्रांसपोर्टर को हो रहा है, फर्टिलाइजर सेक्टर उसमें फ़ायदा उठा रहा है, केमिकल, बहुत सारे सेक्टर, पेस्टिसाइड्स हैं बहुत ज़्यादा चीज़ इंपोर्ट होते हैं उस पर। हाँ, तो फिर वो जब क्वांटिटी चीज़ों की बढ़ जाती है तो वो वेस्टेज तो नहीं उसकी करनी पड़ती, उसकी फिर प्रिजर्वेशन का एक अलग स्ट्रीम शुरू हो जाती है, वो एक एक्टिविटी, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आप जब तक 10 साल की प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी ना। अच्छा, एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ चंद लोग क्या जो भी हेल्म ऑफ द फेयर पे आ जाते हैं, एंड इफ इन द प्लेस ऑफ अ मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट, और फाइनेंस मिनिस्ट्री या इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ या प्लानिंग मिनिस्ट्रीज़ में, तो उनकी अनफॉर्चुनेटली एक ये साइकी हो जाती है कि हम अकेले को लें,
ठीक है। हम कोई भी अकले कुल नहीं, तो वो हम ये समझते हैं कि सब बाद में जो है वो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, बस वही जो है वो अल्टीमेट जो है हाँ। वो वो आपने पहले कहा ना कि वन मैन डिसीजन की वजह से भी नुकसान हुए हैं बहुत देखिए सारे। कंसल्टेटिव प्रोसेस ना हम मार्केट के स्टेक होल्डर्स से करते हैं, ना अकेडमिया को उसको लुक में लेते हैं। अब जैसे अब IMF का जो भी सिलसिला हुआ उससे पहले हाँ। देखिए जो लोग यहाँ अच्छा, वो आपको उस तरफ आगे मैं इस तरफ आने वाली थी कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले से बात हो रही है कि हम उनकी डिक्टेशन पे चल रहे हैं इसलिए हमें नुकसान हो रहा है। अभी मसूद नकवी साहब, आप भी जानती हैं, इकोनॉमिस्ट, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेसिकली, लेकिन वो टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, और आपके जितने भी FBR के प्रोसेस हैं फाइनेंस के, उसमें वो कोई 30 साल से 3 डिकेड से इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने अभी ये कहा कि ये सब झूठ है, बकवास है, कि IMF हमें डिक्टेट करता है, ये कहता है कि पेट्रोल बढ़ा दो या फलानी चीज़ बढ़ा दो, प्राइसेस बढ़ा दो। वो कुछ नहीं कहता है, बल्कि उनके यहाँ भी कल्परेट्स मौजूद हैं, उनके और इनके, यानी डोनर और रिसीवर के जॉइंट हैंड करने से ये सारी सिचुएशन डेवलप होती है। आप क्या कहेंगे? देखिए IMF का एक कारोबार है ना, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक का कारोबारी लोग हैं, बिल्कुल वो कारोबार है उनका टू लेंड मनी, और जो गुड बिजनेसमैन वही होगा ना जो बेटर लैंडिंग कर लेगा और अपनी टर्म्स पर लैंडिंग करेगा, उनको तो फिर उससे उनको तो अर्निंग है ना, बिल्कुल कारोबार है। तो वो तो हर प्रैक्टिस इख्तियार करेंगे कि आपको एक ऐसे ट्रैप में फंसाएं जिसमें उनकी टर्म्स मानी जाएं, आप ज़्यादा अंडर प्रेशर आएँ। तो उन लोगों को ब्लेम करना कोई ज़्यादा प्रूडेंट नहीं है। लेकिन मैं जो आपसे बात कह रही थी कि हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग के अंदर स्टेक होल्डर्स को कोई स्पेस नहीं दी जाती, वन मैन शो के तौर पर लोग। अच्छा, आपका ख्याल है कि ये जो कंसल्टेटिव जो प्रोसेस है विद मार्केट इकोनॉमी के लोग प्लस आपके ट्रेडर्स की एसोसिएशन बनी हुई है, इन सब की, इनको शामिल नहीं किया जाता किसी कंसल्टेशन में? जी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए चले जा रहे हैं, मतलब ग्रेन्स को चलिए, आप फूड आइटम्स को पूछा आपने किसी ग्रोअर एसोसिएशन के लोगों को? एक आदमी उठकर बैठा, उसने कहा शुगर एक्सपोर्ट कर दो, कर दी, शुगर इंपोर्ट कर लो, उनका आटा बहुत हो गया, भेज दो बाहर, आटा बाहर मंगा। तो ये कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है ये FBR में होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होना चाहिए? ये प्लानिंग कमीशन में, ये प्लानिंग कमीशन में, प्लानिंग कमीशन में होना चाहिए। उसके साथ वो इसकी ओनरशिप। मगर प्लानिंग कमीशन में भी तो जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं FBR के और फाइनेंस की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो भी तो बैठे हैं। मिनिस्ट्रीज है ना, मिनिस्ट्री फाइनेंस होगी, सब प्लानिंग कमीशन हो गया, FBR इज वन ऑफ द सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट। तो वो मतलब मिनिस्ट्री फाइनेंस के साथ ही, मतलब अलाइड डिपार्टमेंट आप कह लें। तो बात ये है कि आपको जो भी फैसला करना था, IMF की तरफ जाना था, नहीं जाना था, आपको मुल्क के वो लोग जो आपकी इकॉनमी का पहिया चला रहे हैं, वो उनको ज़रूर उस प्रोसेस में पहले प्रिलिमिनरी डिस्कशंस उनके साथ हो जानी चाहिए। ओके। कॉन्फिडेंस बिल्डअप मेजर्स नहीं लिए गए, ठीक है, उनसे बात नहीं की गई, है ना। और देखिए उनका भी रोटी पानी इसी मुल्क से बना हुआ है, बिल्कुल ना, और उनको भी यहीं से 2 पैसे मिल रहे हैं, उनकी भी सारी एक्टिविटी यहीं से है। तो ये मुमकिन नहीं था कि वो, अगर आप मार्केट के लीडर्स को किसी भी सेक्टर के, अगर आप उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेते और उनकी कंसल्टेशन उनके साथ करते और कोई ऐसे मेजर्स अडॉप्ट कर लेते, तो एक तो IMF के साथ बात करना आसान हो जाता, और क्या पता कि ज़रूरत ही ना पड़ती IMF से बात करने की। अच्छा, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए ये बात इम्पोर्टेंट है। जब दुबई में इन्वेस्टमेंट्स प्रोब की गई किसकी हैं, तो पता चला पाकिस्तानियों, इंडियन और रशियंस की तरफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो वो जो वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करता है, बिकॉज वो फियर नहीं है ना, यहाँ फियर है। अब वो फियर को तो एलिविएट करें ना। आप समझती हैं फियर दोनों तरफ है? उनको ये है कि ये खा जाएंगे, प्रॉपर्ली खर्च नहीं करेंगे उस जगह जिसके लिए लोन लिया है, और इनको फियर ये कि जब अगर ये जो है ये एम्बार्गोज लगाएंगे, ये हम पर कंडीशंस डालेंगे, ये इस तरफ। हमारे यहाँ एक नया क्या मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया है, चोर। हाँ, हर आदमी दूसरे को चोर। एक ये ज़रा मंटारा जो है बंद हो जाना चाहिए। फिर जितना कारोबारी आदमी है चोर, भाई वो बंद कर देगा कारोबार दुनिया में हर जगह। तो इसीलिए कैपिटल फ्लाई किया ना, बहुत दफ़ा ये हुआ ना, लोग तंग आके चले गए फिर। तो क्या हुआ, उससे नुकसान किसका हुआ? उसका नुकसान हुआ। बिल्कुल। तो ये एक तो चोर की कहानी जो है ना, वो बंद खत्म होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि कोई भी ऐसी एजेंसी इस मुल्क के अंदर जो लोगों को हॉन्ट करें,
हॉन्टिंग एजेंसीज हैं, उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई चीज़ ग्लेयरिंग पकड़ी गई किसी के तो ठीक है, लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, वो कानून के मुताबिक। कानून तो बहुत सारे हैं ना, अब नैब का खौफ है, कभी FIA का खौफ है, इकोनॉमिक इस तरह हॉन्टिंग एजेंसीज नहीं होनी चाहिए ना, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो तो हॉन्टिंग एजेंसीज में भी तो कुछ करप्शन है जिसकी वजह से I don't want to talk on that subject because everybody knows about it. तो मेरा एक बेसिक पॉइंट है कि आप हॉन्ट नहीं करें लोगों को स्पेस दें टू वर्क एंड टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स इकोनॉमी। जब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो टैक्स निकलेगा ना। बिल्कुल। आप एक कपड़े को निचोड़ रहे हैं तो आखिरी कतरे तक निचोड़ के और भी फट जाएगा वो कपड़ा। बिल्कुल। तो आपने फटने पर आपका अपनी इकोनॉमी को जिस तरह रप्चर हो रही है वो आपने रप्चर पर ले आए कि और निचोड़ो और पेट्रोल बढ़ा दो, इजी गोइंग, पेट्रोल बढ़ा दो। तो इसका मतलब शफर जैदी की इस बात में बिल्कुल भी दम नहीं है कि ये निचोड़ के कपड़ा वहां पर आ गया कि रप्चर हो गई, इकोनॉमी रप्चर हो गई है। हर आदमी इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट के अंदर है। हाँ, डायरेक्ट टैक्सेस जिन पर लगने चाहिए थे उनसे आपने वेल्थ टैक्स क्लेवरली निकाल दिया। अच्छा। लगा देते आप वेल्थ टैक्स, आपके पास 8-9 महीने थे ना, आप लगा देते वेल्थ टैक्स, आपको इतना डर था आप लगा देते वेल्थ टैक्स। तो गवर्नमेंट ने लगाए ना, जो जिनके वेल्थ टैक्स जिन पे लगते थे उनकी, इसका मतलब उनसे कंसल्टेशन को सीक्रेट कंसल्टेशन हुई। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ बहुत इम्पोर्टेंट, जब ये इकोनॉमिक मेजर्स, जब जो भी रजीम आती है उनको ज़रूर देखिए, जो भी कारोबार कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, एग्रीरियन सेक्टर में हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में हैं, कोई भी और सेक्टर में हैं आपके यहाँ लोग, तो दे आर पीपल ऑफ दिस कंट्री ना। यस। तो आप उन लोगों के साथ आप बात करना नहीं चाहते, आप उनको समझते हैं ये तो चोर भगाओ, हम जो फैसला करेंगे वो सर पर थोपेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने पर्टिकुलरली वेल्थ टैक्स की जब बात की तो वेल्थ टैक्स खत्म किया हो गया था, तो उनकी कंसल्टेशन से खत्म हुआ होगा ना, चाहे वो सीक्रेट है। जो वेल्थ टैक्स जिनकी वेल्थ है, मेरे और आपके पास तो इतनी वेल्थ नहीं है जो टैक्सेबल अमाउंट। लोगों की कंसल्टेशन से हुआ वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। खैर, लेकिन ये कि बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि वो लोग भी उतने ही जो इस मुल्क की इकॉनमी को चला रहे हैं ना, चाहे वो ट्रेडर हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो ग्रोवर्स हैं, वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने उनको चोर वो तो खैर यहाँ हम अभी इस पर उनसे बात कर चुके हैं फारूक साहब। हर एक को गद्दारी का और कुफ्र का फतवा सबसे आसान काम है। अच्छा, आखिरी सवाल जो मैं आपसे कंक्लूड करूंगी इसको, आपकी जो प्रेजेंट असाइनमेंट है वो है, आप जज हैं टैक्स ट्राइब्यूनल की। मुझे ये बताइए कि इसमें जब ट्राइब्यूनल इज अ कोर्ट, तो अदालत में आदमी कब जाता है? जब दो फरीकैन के ग्रीवेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास किस तरह के ग्रीवेंसेस आते हैं? और दो फरीक होते हैं, दोनों फरीक को कौन? एक टैक्स पेयर होगा और एक टैक्स वसूल करने वाला। कानून जब भी कोई कानून बनता है, अच्छा पहले ये भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर इस FBR के साथ हुआ। वर्ल्ड बैंक का थोड़ा बहुत फंडिंग आ गई थी तो लोगों ने टैक्स लॉस को चेंज किया। अच्छा। और 2001 में नया ऑर्डिनेंस लिया। हालांकि 1979 का जो ऑर्डिनेंस था, अच्छा, वो प्रॉपरली मैच्योर हो चुका था। उसमें थोड़ा से एडिशंस ऑफ सम सेक्शंस एंड जैसे न्यूअर इकोनॉमीज, न्यूअर चीज़ें डेवलप होती हैं तो आपको नई चीज़ें कानून में डालनी पड़ती हैं। बजाय वो डालने के ऑल टुगेदर कंसल्टेंट हायर करके वही बाहर से आए, वर्ल्ड बैंक का पैसा था तो वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट आए और उन्होंने वो टॉप सीटर भी करके रख दी। ठीक है। अब उसको मैच्योर होने के लिए मजीद कई साल चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, डिफरेंट लीगल फोरम्स होते हैं, जैसे कोई भी असेसमेंट हो गई टैक्स की तो फर्स्ट अपील पर गए तो वहाँ पर कोई डिसीजन हो गया, वो कभी टैक्स पेयर के फेवर में होता है, कभी डिपार्टमेंट के फेवर में होता है। फिर उससे डिपार्टमेंट एग्रीड होता है, टैक्स पेयर अग्रीव होता है तो ट्राइब्यूनल के पास आता है, ये सेकंड लेवल है। तो वहाँ पर भी दोनों, फिर लॉ इसी तरह मैच्योर होता है। फिर ट्राइब्यूनल डिसीजन करता है तो एक फरीक को पसंद आता है, दूसरे को पसंद नहीं आता। चैलेंज कहाँ होता है? वो हाई कोर्ट में चैलेंज होता है। अच्छा, तो इस आपका अपर फोरम जो है हायर फोरम और हाई कोर्ट है। तो ये मुख्तलिफ लेवल से ये जो लीगल फोरा होते हैं, ये इनके जरिए कानून को मैच्योरिटी मिलती है। मुख्तलिफ जो है वो इंटरप्रिटेशंस जो है ना, वो उस पर डेलिब्रेशंस होती हैं, बात होती है, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ ब्रेन्स और मुख्तलिफ सिचुएशंस को हैंडल करके, और फिर ट्राइब्यूनल में भी ना सिंगल बेंच भी है, डबल बेंच है, ठीक है, फुल बेंच है, लार्जर बेंच मतलब है। उसकी रिव्यू जो है वो, और वो जो है जो उसकी अपील जो है वो हाँ, टीवी में होती है, डबल बेंच नहीं। हाँ, ट्राइब्यूनल की फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं।
ठीक तो हाई कोर्ट से बस सुप्रीम कोर्ट में चले जाते फिर उस हाई कोर्ट में तो सिंगल भी है, डीबी भी है, फिर सुप्रीम कोर्ट तो है। इसलिए जो ट्राइब्यूनल इज फर्स्ट फोरम है, नहीं सेकंड फोरम, फर्स्ट फोरम कौन सा? फर्स्ट अपील का फोरम है ना, फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील का फोरम वो टैक्स हाँ, वो ऑफिसर के FBR पास के अंडर FBR आता के है। अंडर में आता है, हाँ, ठीक है, उसके अंदर आता है। ठीक है। अच्छा शर्मानो, बहुत खुशी हुई कि लोग अभी तक आपको एक रिलीजियस स्कॉलर के ही हवाले से जानते थे, लेकिन ये बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है, ये जो आपने एक्सपीरियंसेस डिफरेंट किस्म के किए और इतने अरसे आप जो अर्ज ऑफ रिटायरमेंट नेक्स्ट ईयर और आफ्टर 2 years, तो इस पूरे अरसे की सर्विस में आदमी इतना एक्सपीरियंस गेन कर लेता है। तो मैं समझती हूँ हमारे मीडिया को FBR के लोगों के साथ कंसल्ट करना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए ताकि वो भी बताए ना कि असल मसला क्या है। प्रोपेगेंडा एजेंसीज तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका जवाब देने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। जवाब सवाल से भी कुछ हल नहीं होती चीज़ें। हम हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा प्लानिंग का प्रोसेस जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बननी चाहिए और उस पर स्टिक करना चाहिए। हर रोज़ एक नई पॉलिसी नहीं लानी चाहिए और जिस वक्त पॉलिसी बनाई जाती है उस वक्त सारे स्टेक होल्डर्स की उसमें और कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरे जो सर्विंग ऑफिसर होता है उसको बुलाते हुए लोग अब खुद भी आते हुए हिचकिचाते हैं, 10 चीज़ें NOC लोग ऑफिसर से बात करो, तो लोग बात करते हैं रिटायर्ड ऑफिसर से। वो समझते हैं इस वक्त इसके हाथ खुले हैं और ज़बान भी खुली है, सब कुछ कह सकता है, लेकिन वो बेमायने होता है। जो सर्विंग ऑफिसर होता है उसको बुलाना चाहिए ताकि वो बताए कि जी हमारी ये मुश्किलात है, ये प्रोपेगेंडा है, ये रियलिटी है, इसमें कहाँ से आपने जैसे कहा कि प्लानिंग कमीशन अगर वीक है आपका, प्लानिंग ठीक है हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं हो रही ना आपके। कोई आप मुझे 5 साल मंसूबा बता दीजिए, कोई 10 साल मंसूबा बता दीजिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, तालीमी मंसूबा नहीं है, कोई ज़राई मंसूबा नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल मंसूबा नहीं है, कोई मंसूबा ही नहीं है। थैंक यू शहरबानो, आपने इतनी यूजफुल, इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे। अभी तो इकोनॉमी का अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो इस पर आपसे हम बात करते रहेंगे। और दूसरे मीडिया ग्रुप्स जो हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, उनको भी मैं समझती हूँ डायरेक्ट इनका कंसर्न जो है पब्लिक के साथ है, उनको बुलाकर पूछना चाहिए कि भाई आप बताएं क्या मसला है। तो बहुत खुशी हुई और एंड इट्स एन ऑनर फॉर माय चैनल कि आपको मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मैंने आपको उस एंगल से अभी नहीं बुलाया, और अभी बीबी फातिमा ज़हरा की विलादत आ रही है, उस पर इंशाल्लाह मैं आपको ज़हमत दूंगी। लेकिन ये एक ऐसा एरिया था जहां आपके साथ कभी भी किसी ने बात नहीं की किसी चैनल ने, ये होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।